عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ فواد چودھری کی جانب سے سرکاری ادارے کے خلاف نفرت پھیلانے کا کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں حکومت ملی، ہم ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مارگرہ ریلوے اسٹیشن اسلام آباد پر گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید ایڈوکیٹ سے ٹیلی فون رابطہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ فواد چودھری اور ان کے خاندان سے برسوں پر محیط نہایت احترام و عقیدت کا رشتہ ہے۔ کل کے نادانستہ بیان سے فواد چودھری اور اہل خانہ کی جذبات مشہور ہوئے، جس پر افسوس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر مملکت فاروق حبیب پر تھانہ فیروز والا شیخو پورہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما پر سابق وفاقی وزیر اور نائب صدر تحریک انصاف فواد چودھری کو چھڑانے اور ڈکیتی کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا۔ فاروق حبیب پر مقدمے کی درخواست تھانہ کوہسار کے پولیس افسر عدیل شوکت کی جانب سے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت اور اسد عمر نے بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی درخواست دائر کی۔ درخواست میں محسن نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کام سے روکنے کی استدعا کی گئی۔ پی ٹی آئی نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مریم نواز کو ایون فیلڈ سے الوداع کیا۔ مریم نواز کی پرواز وارستہ دبئی ہفتہ کی سپہر 3 بجے پنجاب کے دارالحکومت لاہور پہنچے گی، جبکہ پارٹی قیادت اور کارکنان لاہور ایئرپورٹ پر چیف آرگنائزر کا شاندار استقبال کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل بھیجنے، نااہل کرنے اور جان سے ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی موجودگی میں 13 پارٹیاں الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت کی جانب سے 2 باتیں طے کر لی گئی ہیں کہ صوبے کے الیکشن مرکز کے ساتھ ہوں گے اور مائنس عمران کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 57 پیسے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد امریکی کرنسی 261 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ 2 کاروباری دنوں میں انٹر بینک میں ڈالر 30 روپے 11 پیسے مہنگا ہوا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے 2 روز میں قرضوں کے بوجھ میں 3800 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں شدید سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں پارہ -6 تک گر گیا۔ برف باری سے بند وادی گریز شاہراہ بند ہوئے 2 ہفتے مکمل ہو گئے۔
कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,414 कोरोना टेस्ट किए गए। इनमें से 14 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.32% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 10 मरीजों की हालत नाजुक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, हम एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वजीर आजम ने कहा कि ग्रीन लाइन की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई थी। मेरिट पर इन्हिसार नवाज शरीफ की हुकूमत का तर्राए इम्तियाज रहा है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात को अबूर करती हैं। हम मुश्किलात से निकलने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सर्विसेज को आउटसोर्स किया गया है। आज हुकूमतें खुद इदारे नहीं चलाती बल्कि इनको आउटसोर्स करती हैं। काश ML1 गुज़िश्ता 4 साल की बेबुनियाद इल्जाम तराशी का शिकार ना होता। ML मंसूबे पर चीनी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचाने की जरूरत है। जल्द मुश्किल हालात से बाहर निकलेंगे। चीनी हुकूमत और आवाम ने पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत का रिश्ता रखा। तरक्की का सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशनल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशनल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI रहनुमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशनल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और PTI वकला अदालत पेश हुए। दौरान समाअत वकील बाबर अवान, फैसल चौधरी, अली बुखारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि फवाद चौधरी और उनके खानदान से बरसों पर मुहित नहायत एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। कल के दानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मशरू हुए, जिस पर अफसोस है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के भाई फैसल फरीद एडवोकेट से टेलीफोन राब्ता किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने गिरफ्तारी के हवाले से बयान पर फवाद चौधरी के अहले खाना से माजरत की और कहा कि इनकी गिरफ्तारी और झूठे पर्चे का इंदराज सफाकियत निहायत ही काबिल मुज़म्मत है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अपने बयान पर माजरत करता हूँ। फवाद चौधरी और अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। इस मौके पर फैसल फरीद एडवोकेट का कहना था कि चौधरी साहिब, माजरत करना आपका बड़ापन है। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बड़े हैं। मैं और मेरा खानदान आपको अपना बुजुर्ग समझते और निहायत एहतराम की निगाह से देखते हैं। हम बतौर खानदान आप और आपके अहले खाना की सलामती के लिए दुआगो हैं। दूसरी तरफ साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के फवाद चौधरी से मुतल्लिक बयान पर PTI रहनुमा की अहलिया हिबा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को भी उनकी 5 साला वजारत आला से पहले 2002 में गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज पंजाब का हाल वो ना होता जो है। बादिज़ां चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतल्लिक अपने बयान पर माजरत भी कर ली थी। इनका कहना था कि हमारे फवाद चौधरी के खानदान के साथ अच्छे रवाबित हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा की गई। पीटीआई ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला पंजाब जानिबदार करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और अकरामुल्लाह खान की तैनाती और मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा की गई है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब अख्तर जावेद को फारिग कर दिया। सेक्रेटरी कानून पंजाब अख्तर जावेद का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब अहमद रजा सरवर को सेक्रेटरी कानून पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को जेल भेजने, नाअहल करने और जान से खत्म करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि इमरान खान की मौजूदगी में 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत की जानिब से 2 बातें तय कर ली गई हैं कि सूबे के इलेक्शन मरकज के साथ होंगे और माइनस इमरान करवाने की कोशिश की जाएगी। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि डॉलर 260 का ज़र मुबादला के ज़खायर 3.5 अरब तक जा पहुंचे हैं। लाल हवेली पर कब्जे का इरादा करके नाअहल हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। 5 मरले की लाल हवेली हमारी जाती मलकियत है जो दिल यजीदा में काटने की तरह खटकती है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को एवन फील्ड से अलविदा किया। मरियम नवाज की परवाज बरास्ता दुबई हफ्ते की सपहर 3 बजे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचेगी, जबकि पार्टी क़यादत और कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर चीफ ऑर्गेनाइजर का शानदार इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में पार्टी की सीनियर नायब सदर की लंदन से रवानगी और पाकिस्तान पहुंचने के शेड्यूल से आगाह किया। मरियम औरंगजेब ने अपने पैगाम में बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से रवाना हो गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मरियम नवाज साहिबा 28 जनवरी हफ्ते की सपहर 3:05 पर लाहौर पहुंचेगी इंशाअल्लाह। बुलेटिन में खबरें और भी है, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे डॉलर की। अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 रुपए 67 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 262 रुपए पर ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा हुआ है, जिससे अमेरिकी करेंसी 265 रुपए पर फरोख्त हो रही है। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 24 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। 2 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से 2 रोज में कर्जों के बोझ में
150 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज पर ही मुस्बत रुझान देखने में आया। स्टॉक मार्केट में 155 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स में 41,000 की सतह अबूर कर चुका है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और मौसम के हवाले से आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी के डेरे हैं। बलाई इलाकों में पारा -6 तक गिर गया। बर्फबारी से बंद वादिया ग्रीस शाहरा बंद हुए 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। SDMA मुजफ्फराबाद का कहना है कि बलाई इलाकों में शाहराहों की बहाली का काम तेजी से जारी है। वादिया लीपा शाहरा आज शाम तक बहाल कर दी जाएगी। बलाई इलाकों में शाहराहों पर बर्फ की वजह से फिसलन ज्यादा है, लिहाजा शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत कलाम में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़ियारत -12, लीहा -11, चित्राल -9 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अस्तोर कलात -8, कोयटा मस्तोंग -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। मुस्लिम बाग मालम जब्बा -6, मीर खानी, दीर, दरोश और पशीन में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कुछ अपडेट कोरोना के हवाले से शामिल करें। आपको बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,414 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.32% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 10 मरीजों की हालत नाजुक है। SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंजोआ का SHO गाजी अनस खान के हमरा तरबेला डैम टनल 5 प्रोजेक्ट का दौरा। फॉरनर्स की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दौरान ड्यूटी हेलमेट जैकेट के इस्तेमाल और अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की गई। मज़ीद जानते हैं गाजी से तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। DPO हरिपुर इमरान शाह की खसूसी हिदायत पर SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ SHO थाना गाजी अनस खान के हमरा तुरबेला डैम टनल 5 प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। फार्नर की सिक्योरिटी डिप्टी पर तैनात पुलिस एहलकारों को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दौरान डिप्टी हेलमेट जैकेट के इस्तेमाल और अलर्ट होकर डिप्टी करने की हिदायत जारी की। SHO थाना गाजी को हिदायत की कि प्रोजेक्ट में काम करने वाले फार्नरों की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी की। लिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम चौक आज़म पर हुर्मत कुरान मजीद के हवाले से रैली और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अता जोया से। जी उमैर, तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। दीगर ममालिक की तरह आज चौक आज़म पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन और दीगर जो है वो मकाते में फ़िक्र से रखने वाले लोगों ने और मुख्तलिफ तंजीमों ने जो है वो हुर्मत कुरान पाक के हवाले से, जहाँ पे मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन ममालिक के अंदर जो है वो कुरान पाक की बेरुमती की जाती है, इस हवाले से जो है वो एक रैली का एहतजाज भी किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल के उस्ताद और बच्चों ने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम रसूल पाक और कुरान पाक के जो है वो हक में उन्होंने नारे भी लगाए हैं। इस हवाले से उनकी एहतजाजी रैली निकाली गई थी। इस हवाले से हमारे साथ गैरिजन पब्लिक स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का जो एहतजाज है, ये दुनिया इस्लाम को भी हम पैगाम देना चाहते हैं, अपनी हुकूमतों को पैगाम देना चाहते हैं कि यूरोप की आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये आए दिन हुर्मत रसूल पर हमला और हुर्मत कुरान पर हमला, ये इन बेगैरतों की दहशत गर्दी है, ये यूरोपीय यूनियन की दहशत गर्दी है। हम कहते हैं अपनी हुकूमतों को, इन बदमाशों को नकेल डाली जाए। हम हुर्मत रसूल पर, हुर्मत कुरान पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा माल, हमारी जान, हमारी औलादें, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इनको हम वार्निंग देना चाहते हैं कि ये अपनी ऐसी गलीज हरकतों से बाज रहें।
जी, जैसा कि इनकी आपने बात सुनी, इनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और हमारे ममालिक से गुजारिश है कि इस्लामी ममालिक से हुर्मत रसूल के लिए और हुर्मत कुरान पाक के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। और जो यूरोपियन ममालिक हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर डिजकोट से शामिल करें। आपको बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर ने छठी क्लास के 12 साल तालिब इल्म अब्दुल अहद को सर पर छड़ी मार दी, जिसकी वजह से तालिब इल्म चलने फिरने से माजूर हो गया। माजूर बेटे का बाप प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा कर थक गया, लेकिन बेटा चलने फिरने के काबिल न रह सका। माजूर बेटे के बाप ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद डोगर से। जी खालिद डोगर, बताइएगा। इस वक्त मैं डिजकोट फैसलाबाद तहसील में मौजूद हूँ, जहाँ पर 252 रेबे कंगा के वालिद अपने बच्चे को लेकर आए हैं और इनसे पूछते हैं कि बच्चे के साथ उस्ताद ने किस तरह तशद्दुद किया और इसकी क्या हालत है। जी सर, ये मेरा बेटा है। मैंने इसको दाखिल कराया था गवर्नमेंट हाई स्कूल 252 रेबे कंगा में, और टीचर के तशद्दुद से टीचर ने इसके सर में सोटी मारी, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन ये होगी कि ये देखें, इसके ये ऐसे हालात है, चल भी नहीं सकता, माजूर कर दिया इसको। सिर्फ इसके सर में सोटी लगने से जो स्टिक मारी है, उसी वजह से ये मसला बना है। और दोबारा 6 माह हो गया मुझे इसका लायक ला रहे हैं, कभी नहीं अजीज़ फातिमा, कभी किसी होगा कि सरकारी भी और प्राइवेट भी, लेकिन बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा। लिहाजा इसके साथ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, मेहरबानी। नाम अब्दुल अहद है। मैं 6 क्लास ਦੇ ਪੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ खेलिया भी नहीं गया ਜਾਂਦਾ। बच्चे के वालिद का कहना है कि मेरे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में मैंने दाखिल करवाया था, वहाँ पर टीचर ने उसके सर पर सोटी मारी, जिसकी वजह से सड़ी लगने से सर पर उसके जो जिस्म के पट्टे हैं वो डैमेज हो गए, जिसमें मेरा बच्चा चल नहीं सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इसके इलाज मालजे के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर इलाज मालजा करवाया, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे को आराम नहीं आया। मुल्क भर की तरह हुर्मत कुरान मजीद के हक में गड़ा मोड़ में भी एहतजाजी रैली निकाली गई और शदीद नारेबाजी भी की गई। रैली में जमात इस्लामी के ज़िले और तहसील के अहदेदारों समेत अंजुमन ताजरान ने भी भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना अकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह स्वीडन के खिलाफ गड़ा मोड़ में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ जमात इस्लामी यूथ गड़ा मोड़ की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली जेरे सदारत चौधरी शाहिद गुजर सदर जमात इस्लामी यूथ गड़ा मोड़ के जेर एहतमाम निकाली गई। रैली में खसूसी शिरकत सैयद जावेद हुसैन शाह, उम्मीदवार NA 158, प्रोफेसर दिलावर खान, अमीर जमात इस्लामी तहसील मेलसी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान गड़ा मोड़ रंगीन खान खटक, मौलाना अफजल हुसैनी, चौधरी हबीब, सईद रहमानी, खिजर इस्लाम, मलक सलीम, जहूर अहमद चद्दड़, शमशेर सोला, हाजी सोहेल गुराया, जाम उमर हयात, अदनान रफीक, चौधरी तौसीफ, अजमल जट, जुहेब गलोतर समेत दीगर कारकुनान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर ताजर बरादरी भी कसीर तादाद में शरीक थी। मुकर्ररीन ने रैली से खिताब करते हुए स्वीडन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और कुरान पाक की बेहुरमती करने पर उनको शदीद मजम्मत का निशाना बनाया गया। मुकर्ररीन का कहना था आलम कुफ्र इस्लाम की बेहुरमती करने से बाज आ जाए, वरना इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कैमरा टीम के फिरोज वटवा में स्वीडन और नेदरलैंड में की जाने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इन ममालिक से सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करने की हुकूमत वक्त से अपील भी की। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात है? स्वीडन और नेदरलैंड में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, उसके खिलाफ फिरोज वटवा में जो है वो अहल इलाका की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। हमारे साथ मोहसिन इलाका मौजूद है, उससे जानते हैं कि वो तौहीन कुरान और तारीफ कुरान के संगीन और दिल खराश वाक़े के बारे में के खिलाफ जो है क्या कहना चाहते हैं। लाख बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान को ना बदलना चाहेगा। स्वीडन में और नेदरलैंड में
कुरान की बेइज्जती करके हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है और हमें दिली दुख हुआ है। हम इस पे सरापा एहतजाज है और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि नीदरलैंड से और आयरलैंड और नीदरलैंड और स्वीडन से सफारती और तजारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए और बाइकाट किया जाए। हम शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं कि हम और ऐलान करते हैं कि हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है, कुरान पर जान भी कुर्बान है, कुरान पर जान भी कुर्बान है। शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि उनसे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनसे सफारती और तजारती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के तहसील सदर मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में अंजुमन ताजरान और सियासी समाजी कारकुनान की जानिब से 107 मोड़ अड्डा पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अंसर बलोच। जी अंसर, बताइएगा क्या तफसीलात है। तहसील यजमान में अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी कारकुनान और स्कूल के बच्चों की तरफ से एक रैली निकाली गई है। मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर, जिसकी क़यादत में रैली निकाली गई है, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के मतलब हमने ये एक रैली निकाली है, जिसका क़यादत कर रहा हूँ मैं, सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मोहम्मद यूसुफ। और हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि कुरान पाक की बेहरमती की गई है स्वीडन में, और पुरज़ोर अपील करते हैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से वो OIC के साथ मिलकर वो एक करारदाद मंजूर करवाएं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसके ऊपर जोर दिया जाए कि जिस बंदे ने ये कुरान पाक की बेहरमती की है उसको करार वाक़या। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि PHA मुलाजमीन में कुरानदाजी के जरिए हज पैकेज तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी DG PHA ज़ीशान जावेद थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से, जो इस वक्त DG PHA के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। PHA मुलाजमीन में कुरानदाजी के जरिए हज पैकेज तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी DG PHA ज़ीशान जावेद थे। तकरीब में PHA के 15 खुशनसीब मुलाजमीन में मुकम्मल हज पैकेज बजरिया कुरानदाजी दिया गया। इस मौका पर जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन CBA के अहदेदारान ने PHA मुलाजमीन की तनख्वाह 50% अलाउंस के इजाफे के साथ जारी करवाने पर DG PHA का शुक्रिया भी अदा किया। 50% अलाउंस के साथ तनख्वाह जारी करवाने पर PHA मुलाजमीन ने DG PHA और जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन की काविशों को सराहा। PHA हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तकरीब में कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए DG PHA का कहना था, जी हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में आज ड्रॉ हुआ है हज का, तो उसमें टोटल हमारे जो 10 खुश नसीब हैं, हमारी को टोटल स्ट्रेंथ 35-3600 की है रेगुलर एम्प्लॉयज़ की। उनमें से एक हमारे ऑफिसर्स हैं, 6 हमारे जो माली हैं और 3 हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनके नाम निकले हैं। उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह ये जाएंगे, ये PHA की कामयाबी और तरक्की के लिए भी दुआ करेंगे और मेहनत से काम कर रहे हैं और इदारा इनके साथ खड़ा हुआ। DG PHA ज़ीशान जावेद ने हज पैकेज वसूल करने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद पेश की, जबकि मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 50% अलाउंस पर खुशी का इजहार किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के सर्द मौसम में सूरज की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं। मजीद इस वाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, कैसा मौसम है लाहौर में? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है ठंड का राज बरकरार है। ताहम आज जो है सूरज निकला हुआ है और हम देख रहे हैं सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो है वो सिलसिला जारी है। जुज़वी तौर पर जो है अब आलूद है। जबकि हम शहर की दर्जा हरारत के वाले से बात करें तो शहर का दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम अगर दर्जा हरारत के वाले से बात करें तो करंट दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात ने जो है आइंदा इतवार के रोज और 29 जनवरी को जो है बारिश की पेशगोई की है। जबकि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताता चलूँ तो शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 193 तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है DHA फेज 8 में जो है वो 400 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लेवी ग्रीन में जो है 300 के करीब रिकॉर्ड किया गया और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 200 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया है।
जबकि ताहम लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 193 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के हवाले से बताता चलूँ सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 230 तक लाहौर का मजमूई तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। हमने देखा कि बारिशों के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी का रुझान जो था वो बरकरार है, ताहम अब हम देख रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में आ रहा है। जी, SPCIA फैसल गुलजार की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। CIA चूंग की कार्रवाई नकबजनी और राहजनी में मुलविस 2 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में सदीक मसीह, अब्दुल वहाब, तारिक और इरफान शामिल है। मुल्जिमान से 70 लाख रुपए नकदी, 5 अदद घड़ियां, 3 अदद LCDs बरामद कर ली गई हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें कि SPCIA फैसल गुलजार की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। CIA चूंग की कार्रवाई नकबजनी और राहजनी में मुलविस 2 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में सदीक मसीह, अब्दुल वहाब, तारिक और इरफान शामिल हैं। मुल्जिमान से 70 लाख रुपए नकदी, 5 अदद घड़ियां, 3 अदद LCDs बरामद कर ली गई। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा कैसे ये मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आए? देखें, जिस तरह से शहर और लाहौर में चोरी, डकैती, राहजनी, नकबजनी की वारदातें रूज पर थी, तो वहीं पर CCP लाहौर की जानिब से जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन को एक टास्क दिया गया था मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से। उसी पर अगर देखा जाए तो CIA चूंग के DSP फारूक अवान ने SPCIA की हुक्म के मुताबिक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से जेवरात है, जदीद असला है, नकदी है और दीगर माल मसरूफ का जो है वो बरामद किया गया है। फिर बात की जाए अगर CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की, तो बिलाल सदीक कमियाना ने SPCIA को और SSP इन्वेस्टिगेशन समेत DIG इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया था मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए, जिसमें जो है वो जवाद ASI को जो है वो सिलेक्ट किया गया चूंग CIA की जानिब से, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से भारी मिकदार में जो है वो सामान बरामद किया गया है, ज्वेलरी है, इसके अलावा नकदी है और जदीद असला है। ये शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। खासकर नकबजनी की वारदात जो है वो इनका वतीरा था कि जिस तरह से शहर लाहौर में अगर किसी भी घर के बाहर ताला लगा होता था तो ये सिर्फ और सिर्फ उसको चेक करने के बाद उसकी दीवार फैलांग जाते थे या फिर कटर के साथ ताला तोड़ के उनके घर में जो है वो नकबजनी की वारदात करते थे। जिस तरह से CR रिकॉर्ड के मुताबिक बात की जाए तो मुल्जिमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है और DSP CIA चूंग फारूक असगर अवान ने अपनी टीम के हमरा 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जो कि CR और कार्ड के मुताबिक जो है वो पहले भी कई मरतबा जेल जा चुके हैं। और ये लाहौर की सड़कों पे जिस तरह से पोश इलाके हैं, डिफेंस हो गया, गुलबर्ग हो गया, मेन ब्लू वार्ड हो गया, इस तरह के इलाके जो पोश थे वहां पर ये डकैती और चोरी नकबजनी की वारदात करते थे और लाहौर पुलिस के लिए ये दर्द सर बने हुए थे। जिस पर CCP लाहौर की जानिब से टास्क दिया गया था मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए और SPCIA ने जो है वो खासकर फारूक असगर अवान को जो है वो सिलेक्ट किया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए, जिन्होंने जवाब के साथ जो है अपनी टीम जोड़ी और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से जो है टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्वेलरी भी है, इसके अलावा लाखों रुपए नकदी और जदीद असला भी बरामद करके इनको जो है वो मजीद रिमांड के लिए जो है वो अदालत पेश किया जाएगा और अदालत की जानिब से जो है वो इनका रिमांड दिया जाएगा। DSP CIA चूंग की अगर बात की जाए तो फारूक अवान के मुताबिक रिमांड के दौरान भी जो है वो इनसे मजीद वारदातों का इंकशाफ किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में इंसदाद स्मोक के हवाले से इमरजेंसी नाफिज, इसके बावजूद वाहगा टाउन में कार्बन और टायर जलाना मिल्स मालिकान का मामूल बन चुका है। महकमा माहौलियात भी ख्वाब खरगोश की नींद के मजे में। ऐसी शालीमार का अमला 10 बजे के बाद दुकानें सील करते नजर आता है, लेकिन धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां नजर नहीं आती। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोमनपुरा रोड पर और यहाँ पर फैक्ट्री मालिकान की जानब से कार्बन और टायर जलाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जा रही। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो मुख्तलिफ मिल्स हैं जो कार्बन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि इंसदाद समूह के लिए रात 10 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। एक दूसरा बड़ा इंकशाफ ये है कि 10 बजे के बाद इंतज़ामिया मुतहरिक तो हो जाती है सिर्फ ताजर बरादरान पर, और ये जो मिल मालिकान है जो कार्बन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर महकमा माहौलियात की बात करें तो वो इस वक्त खाबे खरगोश की नींद के मजे लूट रही है। अगर मेरा कैमरामैन राइट तरफ दिखा सके तो वो ब्लैक कलर का कार्बन का धुआं है जो अभी भी बेधड़क कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये दिन का टाइम है, ये दिन के मनाजिर हैं, लेकिन 10 बजे का अल्टीमेटम दुकानदारों को दिया गया था, उसके बावजूद ये दिन के टाइम। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।